AC circuit containing the capacitor. Here if we apply the DC is blocked by the capacitor, but it allows the AC pass through it. At any instant, if applied EMF E is equal to E naught sin omega t, then AC हमारा ऐसे चलता है, एक बार चार्ज करेगा फिर डिस्चार्ज करेगा। तो ड्यू टू चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग एक बार चार्ज इसीलिए, और कैपेसिटर उसका डीसी के साथ क्या है कि अगर एक बार कैपेसिटर प्लेट चार्ज हो गया तो फिर करंट को ब्लॉक कर देता है। लेकिन डीसी के साथ एसी के साथ क्या है कि एक बार एक साइकिल में आधे में चार्ज होगा, दूसरे में डिस्चार्ज होगा, और ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलता रहता है। As a result, there is a change in flux, and due to flux changes, a इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होता है, तो यहाँ पे एक करंट जनरेट होती है दोनों के बीच, और इसलिए कंटिन्यूस करंट यहाँ से फ्लो होती है। डीसी इज ब्लॉक्ड बट एसी इज अलाउड टू पास थ्रू द कैपेसिटर। At any instant, you can note down if AC is allowed to pass through the circuit, if AC is allowed to pass through the circuit, then EMF at any instant, EMF at any instant, between the plates of the capacitor, EMF at any instant between the plates of the capacitor, any instant between the plates of the capacitor, it is equal to applied EMF. Applied EMF. It means here applied EMF E naught, so E is equal to E naught sin omega t. E is equal to E naught sin omega t. We know that potential difference between the plates of the capacitor V is equal to Q by C. ऐसा पढ़े होंगे, कैपेसिटर में इतना पढ़े होंगे, between the plates of the capacitor V is equal to Q by C. So E is equal to Q by C. It is equal to E naught sin omega t. Q is equal to C E naught sin omega t. Rate of flow of charge, differentiating both sides we get both sides we get dq by dt is equal to C E naught sin omega t का ओमेगा cos omega t, omega cos omega t. dq by dt is known as the current. So I is equal to here I is equal to dq by dt. So this I is equal to C E naught omega C E naught omega cos omega t. Cos omega t sin 90 plus theta cos theta. Here we can write, this can be written as E naught upon 1 upon omega c, and here this can be written as omega t plus pi by 2. Try to understand.
ई नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी cos ओमेगा टी sin 90 plus theta cos theta. It means cos omega t can be written as sin omega t plus pi by 2. And here E naught upon 1 upon omega c. Here, if we compare the I is equal to E naught upon R, here I is equal to E naught upon R. अगर इससे कंपेयर करेंगे, हियर इफ वी कंपेयर लिख सकते हो, इफ वी कंपेयर I is equal to E naught upon R, here this 1 upon omega c plays as a resistance. Here 1 upon omega c acts as a resistor, and this resistor is denoted by Xc, 1 upon omega c. This is known as the capacitive reactance. वहाँ इंडक्टिव रिएक्टेंस था इंडक्टर में, यहाँ कैपेसिटिव रिएक्टेंस. दिस इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस. दिस इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस. कैपेसिटर में जो रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मतलब होता है रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर इज नोन एज द कैपेसिटिव रिएक्टेंस. रिएक्टेंस ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर इज नोन एज द कैपेसिटिव रिएक्टेंस. Xc is equal to 1 upon omega c. Here 1 upon 2 pi Fc. F is the frequency. Fc is equal to 1 upon 2 pi Fc. So thus we have the capacitive reactance Fc is equal to 1 upon omega c. That is 1 upon 2 pi Fc. Here we see that Xc is inversely proportional to F. अगर जितना फ्रीक्वेंसी अधिक होगी उतना कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम होगा. फॉर डीसी व्हाट वी गेट हियर, फॉर डीसी व्हाट विल बी द Xc? Xc is equal to 2 pi Fc. Fc means 1 upon 0. डीसी के लिए F क्या होता है? 0. डीसी की फ्रीक्वेंसी 0, एसी की फ्रीक्वेंसी हिंदुस्तान में 50. तो 1 upon 0 is equal to infinity. What is the meaning of it? Infinite resistance is offered by the DC. DC के द्वारा, DC के लिए ये जो कैपेसिटर है इनफाइनाइट रेसिस्टेंस देता है. इनफाइनाइट रेसिस्टेंस का मतलब कि अगर हमारे पास ये अगर डीसी लगा दिया जाए ऐसे तो ये कंप्लीटली ब्लॉक हो जाएगा. मीन्स कैपेसिटर कंप्लीटली ब्लॉक्स द डीसी. डीसी को फ्लो होने नहीं देता. लेकिन एसी के साथ क्या है, फ्रीक्वेंसी जितनी अधिक होगी उतना ही रिएक्टेंस कम होगा. इट मीन्स इट अलाउ द एसी बट इट ब्लॉक्स द डीसी. दिस अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला. इफ वी ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन Xc एंड F, ध्यान में रखना, तो अगर ये ग्राफ बनाते हैं Xc और F के बीच, तो व्हाट टाइप ऑफ ग्राफ वी गेट हियर? Xc एंड F. हियर इट इज इंपॉर्टेंट ग्राफ, यू हैव टू टेक केयर. अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस हियर, कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड फ्रीक्वेंसी के बीच if a graph is drawn, then Fc and F, तो कैसा हो जाएगा? Draw the graph, it is very important. Make down your notes. Here this is Xc. ये हमारे पास हो जाएगा Xc and F here.
यही वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगा। अब हमारे पास है क्या कि अप्लाइड ईएमएफ हियर 10 भी है हियर, आफ्टर दिस विल डिवाइड है 10 भी है, I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, I is equal to I naught sin omega t. Here we have applied EMF is equal to E naught sin omega t, and current in the circuit I is equal to I naught sin omega t. What we see is करंट पाई बाई 2 अधिक हो रही है, ओमेगा टी है, ओमेगा उसमें क्या था, ओमेगा टी माइनस इंडक्टर में ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 था, मतलब वहाँ पे करंट लैग करती थी पाई बाई 2 के। फ्रॉम 1 and 2 वी फाइंड दैट हियर 1 है, इट इज 2 है, फ्रॉम यू कैन नोट डाउन फ्रॉम 1 and 2 वी फाइंड दैट करंट लीड्स पाई बाई 2 फेज with respect to the applied EMF. You can note down from 1 and 2 we find that current leads 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 pi by 2 phase with respect to the applied EMF. ये applied EMF से pi by 2 phase अधिक होगा। ग्राफ अगर बनाना चाहें तो व्हाट इज द ग्राफ बिटवीन EI एंड ओमेगा टी, ग्राफ बिटवीन EI एंड ओमेगा टी, EI एंड ओमेगा टी, ग्राफ बिटवीन EI एंड ओमेगा टी। What is the graph? Here E, I, omega t. When t is equal to 0, then E is equal to 0. Omega t अगर 0 कर दिया जाए तो E is equal to 0, मतलब E का ग्राफ हमारे पास ऐसे बनता है। When omega t is equal to 0, I is equal to I naught sin pi by 2, sin pi by 2 की वैल्यू क्या होगी, दैट इज 1। तो ये ग्राफ हमारा ऐसा बनेगा, देख लो ऐसा एक ग्राफ बनेगा। ये हमारे पास E होगा, दिस इज I, और जब करंट एट t इज इक्वल टू 0, EMF is 0 but current is maximum. When current is 0, then EMF is maximum. So here, this is the graph. It is pi by 2. It is pi, 3 pi by 2 and 2 pi. We find the graph like this. What will be the phasor diagram? Phasor diagram. This is the graph between EI and omega t. Now phasor diagram. फेजर डायग्राम होगा क्या, हियर वी सी दैट करंट लीड्स पाई बाय 2 फेज, करंट लीड कर रही पाई बाय 2 फेज विथ रेस्पेक्ट टू द अप्लाइड EMF। हियर इट मीन्स वी कैन फाइंड लाइक दिस, अगर ग्राफ बना दें तो ऐसा बनेगा, हियर
एट एनी इंस्टेंट ऑफ ओमेगा टी, अगर EMF इज ओमेगा टी तो ये इससे 90 डिग्री ऐसे होगा, करंट लीड कर रहा है। Here it is E naught, is I naught, this is 90 डिग्री। तो ये वैल्यू हमारे पास, दिस इज द फेजर डायग्राम, ध्यान में रखना ये हमारा फेजर डायग्राम है। एट एनी इंस्टेंट ओमेगा टी EMF इज E naught, then current is I naught, और ये I ये लीड कर रहा है कितना, फेज पाई बाई 2। और इसको दूसरे तरह से भी बना सकते हैं कि ये हमारे पास VC है डाउनवर्ड और करंट लीड कर रहा है I, इट इज दैट इज 90 डिग्री पाई बाई 2। इस तरह का भी ग्राफ हम बना सकते हैं। हम दिखाएंगे कि देयर इज ए करंट लीड्स पाई बाई 2 फेज, पाई बाई 2 फेज से करंट हमेरा लीड कर रहा है। हियर दिस इज द करंट, दिस इज द फेजर डायग्राम which gives the phase relation between the current and the voltage। यहाँ पे फेजर डायग्राम है, दिस इज द फॉर कैपेसिटर, दिस इज द फेजर डायग्राम between the current and the voltage। So in AC circuit, this is the phasor diagram, this is the graph, and the graph between the inductive reactance and the frequency already we have done like this, FC and F, this is the graph। So all these graphs you have to know it। ग्राफ के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी बनेंगे, ध्यान रखना, तो इस नाते इसको क्लियर करो। ग्राफ कैसा बनता है, फेजर डायग्राम। नेक्स्ट, अभी हम लोगों ने एसी के लिए एक एक इंडक्टर, कैपेसिटर और रेसिस्टर के लिए अलग अलग देखा, क्या ना। AC circuit containing the inductor and resistor, AC circuit containing inductor and resistor। अब तक हमने पढ़ा कि एसी सर्किट कंटेनिंग द रेसिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। अब उसका कॉम्बिनेशन देखेंगे, एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर एंड रेसिस्टर, इंडक्टर एंड द रेसिस्टर। हियर ये रेसिस्टर है
इंडक्टर है, करंट I इज अलाउड, E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पे करंट एंड वोल्टेज बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। हियर वी आर वोल्टेज ड्यू टू रेसिस्टर, हियर करंट। हमने पहले से देखा है कि करंट और वोल्टेज इसमें सेम डायरेक्शन में होता है। इसमें वोल्टेज लीड्स फेज 5/2, यहाँ पे इट इज VL और यहाँ पे करंट, तो वोल्टेज लीड कर रहा है 5/2 फेज विथ रेस्पेक्ट टू द करंट। करंट इसमें लैग करती है। सो हियर यू कैन राइट एज in a circuit containing the resistor and the inductor, in resistor current and voltage are in the same phase. In case of the inductor, current lags phase 5/2 with respect to the voltage. So from this circuit diagram we try phasor diagram. From the circuit diagram we draw a phasor diagram. हम एक फेजर डायग्राम ड्रा करते हैं और ये फेजर डायग्राम होगा क्या, वोल्टेज दिस इज VL, दिस इज करंट एंड द वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टर, और इन द जिधर करंट है उधर VR है, सो दिस इज VR। अगर हम इसको पैरेललोग्राम ला वेक्टर बना लें, सो दिस विल बी, इसको हम VZ कह सकते हैं, VZ। तो रिजल्टेंट वोल्टेज ध्यान में रखना, इन केस ऑफ DC करंट एंड वोल्टेज और स्केलर क्वांटिटी, बस इन केस ऑफ AC करंट एंड वोल्टेज आर इन वेक्टर क्वांटिटी। ध्यान में रखना है वेक्टर क्वांटिटी है। सो VZ इज इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर रूट। सो VZ इज इक्वल टू VR I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस I स्क्वायर XL स्क्वायर। सो इसको Z इज इक्वल टू VZ अपॉन I बाहर आ जाएगा, रूट R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। ये ध्यान में रखना। इसी Z को इम्पीडेंस कहते हैं, ध्यान में रखना। Thus the impedance is equal to this Z, it is known as, thus Z impedance Z is equal to R स्क्वायर, XL is equal to ओमेगा L, ये भी ध्यान रखना। तो हम लिख सकते हैं इट इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर। दिस इज द इम्पीडेंस। एंड हियर इफ इट इज 5, we see that this I लैग कर रहे हैं। यहाँ पाई अगर बना रहा है तो यहाँ अगर हम tan पाई ले लें, tan पाई इट इज इक्वल टू VL अपॉन
ये रूट हो जाएगा VR² प्लस VL²। तो वैल्यू हमारे पास tan phi इज इक्वल टू VL अपॉन रूट VR² प्लस VL²। tan phi V इज इक्वल टू IR IXL अपॉन रूट I² R² प्लस I² XL²। तो हमारे पास एक tan phi की वैल्यू जो आ जाएगी इट इज इक्वल टू XL अपॉन रूट R² प्लस XL²। Here tan phi, here current leads, यहाँ पे करंट लैग कर रही है, करंट लैग कर रही है। हियर करंट लैग्स फेज phi, so current I is equal to current I is equal to I naught sin ओमेगा t माइनस phi। ध्यान रखना वोल्टेज के रेस्पेक्ट में करंट इधर है, इट मीन्स इट इज लैगिंग, क्योंकि VR एंड I बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, सो दिस विल बी द। तो इस तरह से हमारा करंट कितना लैग करेगी, दिस इज फेज phi और I इज इक्वल टू tan इनवर्स XL को हम ओमेगा L भी रख सकते हैं अपॉन रूट R² ओमेगा² L²। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं AC सर्किट कंटेनिंग द इंडक्टर। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे AC सर्किट कंटेनिंग द रेसिस्टर एंड द कैपेसिटर। हो गया है, तो ये चीज़ है, इसको देख लो।